Yeah, hello everybody, and good evening, and thanks all our participants to join our 41st national webinar on the topic of the success key of our life. आप सारी जिंदगी एक ही प्रयत्न करते रहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें। कभी आपने उन सफलताओं के लिए कुछ प्लान बनाया, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, कभी उनके लिए आत्म मंथन किया? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी थैंकफुल टू आवर ऑल टीम SK मीडिया रिसर्च, डॉक्टर पूर्ति त्रिवेदी, डॉक्टर सुजान पटेल एंड माई सेल्फ डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा, and this is our 41st national webinar, and we are and our team are regularly achieve day by day new goals, new targets, and your lots of love and supports. And very thankful to all our viewers, those are viewing our motivational videos and webinars and regularly support us. So now we are continuing with today's topic. It's a how to be successful in life. So now we are discussing, do you know what leads one person to achieve success in life over another? After doing a lot of research, we have come up with the 10 key of success. Success in within reach. If you are willing to put in the work, but first you need to first learn how to be successful. आपने देखा होगा कि कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, सारी जिंदगी किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए लगे रहते, फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वो सफलता उनको प्राप्त नहीं होती जिसके लिए वो सारी जीवन भर अपनी मेहनत लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक प्लान, काफ़ी सारी, मतलब आप बोल सकते हैं कि उनके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो प्लान आउट नहीं हुई, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। सो हियर एट फाइनली फैमिली होम्स, इट्स आवर मिशन टू हेल्प यू who have the odds stacked against them to beat the odds and succeed in life. So what is the secret source of success? तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा सफलता क्या है, सफलता क्या है और सफलता का क्या महत्व आपके जीवन में है। सो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आप सफलता को किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपने जीवन में? मोस्ट ऑफ पीपल कंसिडर सक्सेस एज having great career, wealth, and respect from peers. But don't overlook goals that will support a happier life. Prioritizing relationship, physical health, safety, contributing to others, and creating expression how many shown to improve feelings of happiness. However, don't confuse the feeling of happiness with success. You could be quite happy eating Cheetos in your parents' basement while you watch TV. That does not make you a success. As Eleanor Roosevelt said, happiness is not a goal, it's a byproduct of a life well lived. Success in life means attaining your vision of good life. It means achieving specific goals that result in the future you have planned yourself. Success in his life is defined by the individual. Your vision of success looks than someone else. If you are looking for the key to success in business versus the key to success in a relationship, your strategy and effort are going to be quite different. It means also important to take care that you don't let someone else dictate what a successful life for you looks like. You only have so much time in life, so many sure you create a holistic picture of yourself. The hilariously talented Kim Jong was raised to pursue medicine, and even
though he was a successful physician, it was not what he really wanted. Later, he found his way into acting and comedy, and to the delight audience everywhere, he is now living into his vision of success. अभी जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया कि सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, सफलता का मापदंड क्या है, और आप लोग कैसे पहचानेंगे कि वो आदमी सफल है या असफल है। कभी कभी क्या होता है कि आज के हमारे जीवन में, आज के हमारे जो दिनचर्या है, आज का जो हमारा वातावरण है, सराउंडिंग, हम लोग क्या देखते हैं कि किसी आदमी के पास में अपार धन है, अपार संपत्ति है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास में है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो हम लोग समझते हैं वो आदमी अपने ज़िंदगी में बहुत सफल है। तभी अचानक कुछ क्षणों के बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ, ऐसी घटना आपके साथ घटती है कि आपको पता चलता है कि वो आदमी जिसको आप अपना आदर्श मान रहे थे, जिसको आप अपने लिए ऐसा मानते थे कि अगर सफलता की कोई पहचान है तो उस आदमी का व्यक्तित्व है, पर अचानक क्या होता है, अचानक से आपको मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, ही अटेम्प्ट सुसाइड। आपको झटका लगता है, आप सोचते हैं ऐसा क्यों? अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है तो उसने इस मार्ग को क्यों अपनाया, उसने आत्महत्या के मार्ग को क्यों अपनाया? अगर सफलता का यही अंत है कि आपको बाद में सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़े, आत्महत्या करनी पड़े, या अपने जीवन को समाप्त करना पड़े, तो क्या आप ऐसी सफलता पाना चाहेंगे? कोई नहीं। शायद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह की सफलता नहीं पाना चाहेगा कि उसको बाद में अपने जीवन का अंत करना पड़े। तो फिर सफलता क्या है? क्या आप बड़ी बड़ी गाड़ियों को, बड़े बड़े वैभव को, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों को, अपार संपत्ति को सफलता मानते थे? या एक वो व्यक्ति जो शायद बड़ी गाड़ी ना रखता हो, शायद बड़ा बंगला ना रखता हो, शायद उसके पास वो सब ना हो जो एक धनी व्यक्ति के पास होता है, फिर भी वो खुश है, संतुष्ट है और अपने जीवन में कामयाब है, और वो अपना काफ़ी सारा समय अपने जीवन का अपने परिवार के साथ हंसी खुशी में व्यतीत कर रहे हैं। तो आप कौन से व्यक्ति से इंस्पायर होंगे? आप उस व्यक्ति से इंस्पायर होंगे जो कामयाब होने के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी कुछ समय व्यतीत कर रहा है। सारे जीवन भर मैं दौड़ता रहा इन पैसों और गाड़ियों के पीछे। जीवन मैं दौड़ता रहा पैसों और गाड़ियों के पीछे, अब जाकर ख्याल आया मुझे, अब जाकर जीवन के उस पड़ाव पर, उस मोड़ पर ख्याल आया मुझे कि जिस पैसे को मैंने कमाया जीवन भर दौड़ के, जिस पैसे को मैंने कमाया जीवन भर दौड़कर, अब उनको खर्च करना पड़ रहा है दवाइयों के पीछे। ये पंक्तियां मैंने खुद लिखी हैं। ऐसा होता है कभी कभी, आप कहीं बैठे होते हैं और आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं तो आप उन पंक्तियों को लिख लेते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक कवि होता है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपने आप को, अपने अंदर की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से बयान कर देते हैं और उनको कागज़ पर लिख देते हैं या उतार देते हैं। तो सफलता
का मापदंड धन दौलत और वैभव से नहीं पाया जाता। सफलता के साथ साथ आपको अपने जीवन में संतुष्टि भी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप अपने कार्य से, अपनी सिद्धियों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सफल नहीं हैं। आपको कामयाब होने के लिए, आपको सफल होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे मापदंडों को अपनाना पड़ेगा जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर कोई क्रिकेटर जब वो टेस्ट मैच खेलता है या टेस्ट मैच खेलने के टाइम आपने देखा हो क्रिकेट स्लो हो जाता है। बहुत से लोग टेस्ट मैच देखते नहीं है। अरे यार 5 दिन तक कौन बोर होगा देख देख के। लेकिन असल में एक क्रिकेटर की परीक्षा टेस्ट मैच में होती है। लेकिन अभी आज इतना ज़माना फास्ट हो गया है कि जो लोग 20-20 क्रिकेट खेलते हैं उन्हें सिर्फ 6 और 4 मारने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो लोग टेस्ट मैच में उतना सरवाइव नहीं कर पाते और वहाँ वो निष्फल हो जाते हैं। वो अगर वहाँ पे निष्फल हो गए इसका मतलब ऐसा नहीं वो अच्छे क्रिकेटर नहीं है। वो अच्छे क्रिकेटर हैं लेकिन उनको वहाँ पर वो संतुष्टि नहीं मिलती, वो फ्रीडम नहीं मिलता जहाँ जिस तरह वो खेल पाए। माइंड सेट नहीं हो पाता उनका उस तरीके से अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो सफलता के लिए आज हम डिस्कस करेंगे 10 की ऑफ सक्सेस। सफलता के 10 गुरु मंत्र या 10 की जो आपको आपके जीवन में सफल बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होगी। Now that you know that success is how do you get there, believe it or not, despite success looking different for everyone, there is a common list of strategies or keys to achieving that success. And here the really good news. Once you learn the how, you will be able to use these tools to bring about multiple success in your life. These keys or tools listed below will help you unlock success in your life. They are strategies used by successful athletes, businessmen, and artists. Make sure you have your clear vision of successful life in front of you as work through them. आप अगर एक उद्योगपति हैं, आप अगर एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक एक्टर हैं, अगर आप पेंटर हैं, अगर आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं या बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हर किसी के जीवन में सक्सेसफुल होने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी को जब तक अपने किए हुए कार्यों में संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती, जब तक उसको ऐसा नहीं लगता कि आज मैंने जो कार्य किया है वो मैंने उसमें अपना 100% अपना योगदान, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत लगाई है, तब तक उसको उस सफलता का मूल्य नहीं पता चलता। So now we discussing our first key for success is make a plan. आपको प्लान बनाना चाहिए। The very first key for success is to make a plan. This means having a clear picture of what a successful life looks like to you and putting together a well-defined set of goals to get you to deadline.
जीवन में आपके पास आपका एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्लानिंग वेल स्टार्ट्स विद फिगरिंग आउट व्हाट यू वांट एंड राइटिंग इट डाउन इन डिटेल्स। It's important to have clarity on your definition of success. This is the foundation of your plan. To succeed means to accomplish a goal. If you don't set goals, you will never succeed. If you had like more in-depth help with goal setting, we recommended reading the books. अगर आपने अपने जीवन में कुछ प्लान बनाया है तो उसको आप राइट डाउन करिए। आपने दिमाग में सोच लिया और उसको कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी चीज को, कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आप उसको लिखते हैं एक बार, तो वो आपके दिमाग में, आपके दिमाग की मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने प्लान को कागज पर लिखिए, तो आपका जो प्लान है वही आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा, आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा, और वही आपको आपका सही मार्ग सफलता का दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बोलती हैं। आपने कभी सोचा कि कभी आप किसी जगह पर खड़े हैं और वहां पे आपको ऐसा लगा कि यार ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जमीन है, इतनी खाली जमीन, यहाँ पे क्या क्या बन सकता है? वो आप नहीं बोल रहे, आप नहीं सोच रहे, वो जमीन आपसे बुलवा रही है। उसका आकर्षण आपके दिमाग में ये सारी चीजों को उत्पन्न कर रहा है। तो आप जाकर के उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने प्लान को, अपने पाथ को, कि आप किस तरीके से अपने मंजिल और टारगेट को प्राप्त करेंगे सफलता के, कागज पे लिखते हैं, तो मार्ग, वो पाथ अपने आप आपको बताता है कि आप कहां पर गलत है और कहां पर सही है। सो नाउ डिस्कसिंग सेकेंड की, prepare for the unexpected. Many of the best laid plans have been delayed by a single misstep. एक सिंगल मिसिंग स्टेप आपको वहां से गिरा सकता है। Preparing for the unexpected can make the difference between your plans ending in failure of succeeding despite a bump in a road. So how do you prepare for the unexpected? How do you prepare for the unexpected? Start by making a list of things that could wrong in your plan. Then create workarounds and backups for each potential problem. Even when I am driving a route I know well, I usually keep my GPS up and running to help me navigate traffic jams, construction or missed turns. So now the third key of the success is prioritize your goals. अपने गोल को हमेशा प्रायोरिटी दें। As you create your systems and put your good habits into practice, you will probably find there is not enough time in each day to work towards every goal. Manage your time wisely. आपके टाइम को आपको मैनेज करना आना चाहिए। हमने एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वेबिनार किया हुआ है, जो कि आप चाहें तो हमारे जो वीडियो लिस्ट में जाकर के टाइम मैनेजमेंट का वेबिनार देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि हाउ आप कैसे अपने
टाइम को मैनेज करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो डेट द राइट एक्टिविटी टेक प्रायोरिटी। जो भी एक्टिविटी आपके लिए जरूरी है उसको आप प्रायोरिटी में लें। If you are not sure how to prioritize goals, it may help to apply some techniques like a numerical ranking system for the Alzheimer matrix. Prioritizing your goals also means not letting things that never even made you list get in front of pursuing what did. In other words, don't let taking to a telemarketer derail your plans to work on your website. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी या छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है कि कोई भी काम को करने में, कोई भी कार्य को करने में कभी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। सफलता के सिद्धांतों में, सफलता के मापदंडों में और सफलता की के लिए ये भी एक ज़रूरी है कि आपको कोई भी कार्य को करने के लिए कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक समय की बात है, एक बार एक गुरु और शिष्य, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते सभी थक गए और उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई, किंतु अगर विश्राम करते तो जहां पर उन्हें जाना था उस जगह पर पहुंचने में काफी समय लग जाता और रात हो जाती। इसलिए वह लोग निरंतर चल रहे थे। रास्ते में एक नाला आया जिसको पार करने के लिए लंबी छलांग लगानी थी। सभी लोगों ने लंबी छलांग लगाकर नाले को पार किया, किंतु गुरुजी का कमंडल उस नाले में गिर गया। सभी शिष्य परेशान हुए। एक शिष्य जिसका नाम गोपाल था, कमंडल निकालने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने चला गया। अन्य शिष्य बैठकर चिंता करने लगे, योजना बनाने लगे कि आखिर वह कमंडल कैसे निकाला जाए। क्योंकि गुरुजी ने सभी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था, उनकी सीख पर कोई भी शिष्य अमल नहीं कर रहा है। अंत तक वास्तव में कोई भी उस कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ। ऐसा देखकर गुरुजी को काफी विचलित हुए और एक शिष्य मदन को उठा और उसने नाले में हाथ लगाकर देखा, किंतु कमंडल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह नाले के तह में जा पहुंचा था। तभी मदन ने अपने कपड़े संभाले और नाले में उतरा और तुरंत कमंडल लेकर ऊपर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य मदन की खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की। उसने तुरंत कार्य को अंजाम दिया और गुरु को द्वारा पढ़ाए गए पाठ का कार्य का पूर्ण किया। तभी शिष्य गोपाल, जो सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, वह भी आ पहुंचा और उसे अपनी गलती का आभास हो गया। तो इस कार्य से, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ना कि किसी पर डिपेंड होकर। अगर आप किसी पर डिपेंड होकर के अपना कार्य करेंगे तो हो सकता है वो कार्य पूर्ण ना हो, या हो सकता है उस कार्य को करने में देरी हो जाए, और अगर कार्य हुआ भी तो वो जो परफेक्शनिस्ट है, वो जो विजन है जो आपके दिमाग में था, शायद उस कार्य में उसकी झलक ना हो। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ की ऑफ सक्सेस इज डेवलप गुड हैबिट्स। अपने अंदर अच्छी आदतों का समावेश करें। अपने अंदर अच्छी आदतों का समावेश करें। सो यू कैन हैव बिग ड्रीम्स। आपका बड़ा सपना होना चाहिए, ग्रेट गोल्स होने चाहिए, एंड स्टिल फेल। द थर्ड की ऑफ सक्सेस रिक्वायर्स यू टू टर्न योर गोल्स इनटू एक्शंस।
Repeated action in the right direction become the helpful habits, and once you form the right habits, you create momentum. Creating systems for your life as you are forming good habits can help you to stay on track. You can build system by grouping good habits together. Having a system in place can make you form having to make decisions on the fly or keep track of doing all your goal oriented. So instead you follow on intentional daily pattern that moves you towards your goals with less stress. This has the added benefits of reducing stress and freeing your attention to focus on the right things that truly require more brain power. अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को डालें, अपने आप अच्छे सपने देखें, अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, अच्छे सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानें, प्रोसेस को जानें। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम आप बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन करने के बाद भी आप निष्फल हो जाते हैं, तो भी घबराएं नहीं। हो सकता है कि बार बार करने के बाद में वो काम आपका सक्सेस हो जाए। एक किसी ने दोहा कहा है, करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पे और सिल पर पड़त निशान। कभी आपने देखा है कि कुएं में से जब पानी निकालते हैं तो वहां पर रखा हुआ पत्थर पर रस्सी के निशान बन जाते हैं। अब आप देखिए कहाँ पत्थर कितना मजबूत और कठोर होता है और रस्सी कितनी नाजुक और नरम होती है, फिर भी रेगुलर पानी निकालने से क्या होता है, उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो करत करत अभ्यास थे, अगर आप किसी वस्तु का, किसी विषय का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, मतलब आपका कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाएगा। जिस तरीके से रसरी आवत जात पे, अगर रस्सी अपनी लगातार प्रयत्नों पर आ जाए तो सिल पर पड़त निशान, और पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आपको अपने कार्य को निरंतर करना चाहिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए। सो नाउ डिस्कसिंग आवर फिफ्थ की ऑफ सक्सेस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने भूतकाल या पास्ट में जो कुछ भी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को, लोग बोलते हैं गलतियों को भूल जाओ, नहीं, गलतियों को नहीं भूलना चाहिए, उल्टा उन गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। हमने जो गलती करी या हमसे जो गलती हुई, उस गलती का हमें पता होना चाहिए कि हमने उस गलती करने से हमें क्या नुकसान और क्या फायदा हमें उठाना पड़ा। They say the road to success is paved with failure. What they don't say is that each piece of failure on the road probably looks different than the other. Success most likely came by way of trying many different ways. You can fail your way to success, but almost never by making the same mistake over and over. Failure is a part of the process of becoming successful if you make it a teacher. आपने कभी सुना होगा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने आप को असफल नहीं देख सकता वो कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे सफल होना है तो असफलता को भी अपनाना पड़ेगा। दिन और रात नेगेटिव और पॉजिटिव जीवन का ही एक अभिन्न अंग है। तो आपको अपने सपनों को बड़ा करना चाहिए, और आपके साथ जो गलतियां हो चुकी हैं
उन गलतियों से आपको सीखना चाहिए, ताकि आप उन गलतियों को दोबारा से रिपीट ना कर सकें और आप उन गलतियों से ही अपने आने वाले भविष्य के पथ को प्रदर्शित कर सकें। सो नाउ I am telling a beautiful story of all of you कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। एक छोटे से कस्बे में शंभू नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी और आमदनी बहुत कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता, एक छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसा नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसके हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। तो शंभू ने भी नेता बनने की ठान ली और कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। बिस्तर पर लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्भ से चमकता रहता है और भीषण गर्मी उत्पन्न करता है। तभी उसने देखा कि एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने अपनी गर्मी बढ़ाई, मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। तो जाकर के शंभू को जब एहसास हुआ कि ठंडी हवा बनकर मैं बलवान हो जाऊंगा और शक्तिशाली बन जाऊंगा, तो कुछ दिनों के बाद वह हवा बन गया। फिर क्या हुआ? हवा बनकर वह इतर उतराता इठलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। और कुछ समय के बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। तब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों के बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंखें खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है, लेकिन वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो वह स्वयं ही है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में तल्लीन होकर अपने आप को लगन लगा करके करना चाहिए। आपको सफलता आपके अपने कार्य में ही मिलेगी। क्योंकि आपका कार्य
आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। नाउ वी आर डिस्कसिंग द very important key, sixth key of the success is the strategies. Try different strategies, try another way. The road to success is not straight. There are stops and starts, turn and detours. Anyone who says they have got the exact path to success for you is probably as the creeping saying goes. There more than one way to skin a cat. Heck, there more than one way to get the meaning of that saying across. Let's mix up a never more pet friendly one. There more than one way to peel a banana. Anyway, you put it there, more than one way to do just about everything. So it if at first you don't succeed, try another way. Try a new strategy, come at your goal from a new angle at a different time with a different person. There could in fact be many effective strategies. You just need to find the right one. The only way to find it is to keep changing and keep trying until you find one that works. आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी ट्राई करनी चाहिए। कभी कभी होता है आपने एक स्ट्रेटजी अपनाई और उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य को किया, आप अपने कार्य को लगातार मेहनत से करते जा रहे हैं फिर भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो यू कैन चेंज योर स्ट्रेटजी। आप अपने स्ट्रेटजी में बदलाव लाइए, अपने स्ट्रेटजी को आप चेंज करिए। कभी कभी आपने से देखा भी होगा कि ट्रैक, लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक चेंज करने का टाइम आ गया, गियर चेंज करने का टाइम आ गया। आपको आपके कार्य में सफलता नहीं मिल रही और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, अपने आप को इवैल्यूएट करो, अपने आप को सोचो एंड ट्राई टू चेंज द गियर, और अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजियों को प्लान करके अपने डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर आपको चलना चाहिए। नाउ द सेवेंथ गोल्डन की टू सक्सेस इज टू टेक स्मार्ट रिस्क। स्मार्ट रिस्क, छोटे छोटे रिस्क आपको जीवन में सफलता पाने के लिए लेने पड़ेंगे। As you try out different strategies, you may find that you are trying something entirely new. It might feel scary, admittedly, taking risks is intimidating, but taking smart risks can have big payoffs. Taking a smart of calculated risk means researching potential outcomes and determining what your chance of success are and if the payoff is worth risking the harm that could be done. It takes time to develop good risk taking skills. You may have a few painful failures as you figure out how to take calculated risk in life. It's best to start our taking small risks. As you get better at it, you will probably become more comfortable, but don't let your comfort be the only deciding factor. Often taking a risk is the only way to achieving success. आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कहीं पे, नो बिजनेस विदाउट रिस्क। आप जीवन में जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, वेब सीरीज थी, तो मुझे ध्यान है उसमें एक डायलॉग था
रिस्क है तो इश्क है। जो आदमी रिस्क लेने से डरता है कभी भी कामयाबी उसके लिए नहीं आती। आपने मेरे काफी सारे वेबिनार के अंदर में अर्जुन और एकलव्य की कहानी सुनी होगी। काफी बार मैंने आपको अर्जुन और एकलव्य के बारे में बताया। एकलव्य ने रिस्क लिया, अपने समाज से लड़ा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यहां तक कि गुरु द्रोण ने उसको धिक्कार दिया, उसको अपनाया नहीं। उसके बावजूद भी वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। और उनके गुरु ने जब उनसे दान में अंगूठा मांगा तो एक भी सेकेंड का विचार किए बिना एकलव्य ने अंगूठा अपने गुरु को दान कर दिया। आप आज देखेंगे बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके इतिहास आप पढ़ेंगे तो वो रिस्क पे डिपेंड है। उन्होंने रिस्क लिया और उसके आगे वो कामयाब हुए। अगर आपका जिगर बड़ा नहीं है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बड़ी नहीं है, तो आप कभी भी बड़े बनने के सपने नहीं देख सकते। बड़े बनने के सपने के लिए आपको रिस्क लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक बढ़िया सी एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी था, एक छोटा 5 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसका नाम रमेश था। खेलते खेलते रमेश दूसरे, यानी कि अपने जो खेलने में 2 टीम थी, एक टीम में रमेश खेल रहा था, दूसरी टीम में दूसरे लोग खेल रहे थे। तो रमेश जब खेल रहा था तो दूसरी टीम पर उसका खेल भारी पड़ रहा था। तभी अचानक दोनों ग्रुप में कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया। दूसरे दल का एक बड़ा लड़का रमेश से लड़ने लगा और कहा, नौकर है नौकर की तरह रहे। इस पर रमेश कुछ घबरा जाता है। यह बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है। इस शब्द को कभी नहीं भूल पाया। बड़े होकर रमेश ने एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाई। अब वह नौकर नहीं, मालिक था। उसके साथ कई छोटे बड़े कार्य करने वाले लोगों का हुजूम लगा रहता था। एक दिन जब वह लिफ्ट से नीचे उतरा तो देखता है कि पढ़ी लिखी महिला जो अभी गाड़ी से उतरी है और सुरक्षा में तैनात महिला गार्ड को अपशब्द और गाली गलौज कर रही थी। महिला गार्ड अपनी सफाई देने का प्रयास कर रहा है, किंतु उसका प्रभाव धन में घमंड में डूबी हुई उस महिला पर नहीं पड़ा। तभी रमेश की आंखें महिला गार्ड के साथ खड़े लड़के पर पड़ती है जो मां के पीछे डरा सहमा खड़ा है। उस लड़के को देखकर बचपन याद आता है रमेश को कि जब वो खेल रहा था तो उससे भी किसी ने कुछ कहा था, नौकर है नौकर बन के रहे। महसूस हुआ शर्मिंदगी किसे कहते हैं। अचानक वो सारा दृश्य आंखों के सामने गया और आंखें नम हो गई। रमेश ने उस महिला से कहा कि अगर कोई गलती हो गई है और वो आपसे क्षमा मांग रहा है तो आप उसको क्षमा दीजिए। उस व्यक्ति से अगर गलती हुई है और वो आपसे क्षमा मांग रहा है तो क्षमा दीजिए। वो आपसे गालियों की उम्मीद नहीं कर रहा है। आप बड़े हैं, बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए, ना कि अपने मुंह को गंदा करना चाहिए। यह बात सुनकर के उस औरत को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने हाथ जोड़ करके उस नौकर से क्षमा मांगी और कहा कि मुझसे जो अपशब्द निकल गए हैं मेरे मुख से, उनके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। सो नाउ our 8th
की ऑफ सक्सेस इज लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। जो भी आपको आपकी फील्ड में, जिस फील्ड में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस फील्ड के अनुभवी लोगों से आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ट्रूथफुली देयर इज नो वन पाथ टू सक्सेस, नेवरदलेस a lot can be learned from studying other successful people. Even better is to be mentor or to study directly under someone. Recorded history does not always catch all the details and nonsenses. Start with doing some research and study successful people who did something in the same realm of what you are striving or achieving. What to innovate, study innovators. Want to be a great painter, study Van Gogh, Monet and Picasso. Want to own a restaurant, learn from a restaurateur. Watch what they do, take notes and ask questions. आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो सचिन तेंदुलकर की बैटिंग टेक्निक को देखिए। कामयाब टेस्ट प्लेयर तो राहुल द्रविड़ को देखिए। कामयाब बिजनेसमैन बिल गेट्स को देखिए, जैक मा को फॉलो करिए, मुकेश अंबानी जी को फॉलो करिए। अगर आप जैसा भी बनना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में, आप अगर एक अच्छे राजनीतिज्ञ बनना चाहते हो, नरेंद्र मोदी जी को देखिए। आप जैसा भी अपने जीवन में जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिधर पे भी, जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को सफलता देना चाहते हैं, तो आप अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट हो चुके हैं उनकी जीवनियाँ पढ़िए। उनसे अगर हो सके तो सीखने को मिलेगा, और आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, वो उनके द्वारा आपको सीखने को मिल जाती है। Ninth key to success is master how to say no. कभी कभी आपने देखा है कि बहुत से लोग ना कहने में ना नुकुर करते हैं, ना कहने में उन्हें बहुत शर्म आती है, लेकिन आपको ना कहना आना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में ना नहीं कह सकता वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आई थिंक अवर कल्चर अंडरवैल्यूज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो. It can be uncomfortable. If you listen to interviews with successful people, you probably hear them talk about turning down great opportunities they knew are not right for them. हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो कल्चरल वैल्यू है, हमारे जो एथिक है, उनमें हमें नहीं सिखाया गया कि हम किसी को ना कहें। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए हम लोग काफ़ी असहज या अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब हम किसी को ना कहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस या ना कहना नहीं सीखेंगे तो आप अपने आप को कामयाब नहीं पा सकते। Learning how to say no is an essential to success in life. Successful people say no all the time. Saying no means knowing yourself, your boundaries, and being able to determine what is worth your time and energy. Saying no to the wrong things leaves space to say yes to the right thing. It leaves room from the right opportunity. आपको नो कहना है उन चीज़ों को जो आपकी सफलता की राह में अड़चन बनी हुई है। जो चीज़ गलत है उसको ना बोलना आपको आना चाहिए, और आपको राइट चीज़ को यस करना भी आना चाहिए। दूसरी सेकेंड, आप सभी को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स, जिन लोगों को काफ़ी समय से वेबिनार के सर्टिफिकेट्स प्राप्त नहीं हुए हैं, कुछ
अनकंफर्टेबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र आपको आपके वेबिनार्स के सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। और जो लोग भी आज के इस वेबिनार में रजिस्टर्ड हैं उनको भी उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट एंड 10th की ऑफ गोल्डन की ऑफ सक्सेस। उसके पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी इस तरीके से है, काफ़ी समय पहले, काफ़ी पुराने समय में एक लकड़हारा था। लकड़हारा था, पूरे दिन मेहनत करता था और मेहनत करके वो अपने घर पे जाता था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लकड़हारा को अपने मन में एक दिन ये विचार आता है कि सक्सेस किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। आपको भी अगर आपके मन में ये विचार आए तो आप अपने आप को आत्ममंथन कीजिए। तो एक बार वो लकड़हारा एक व्यक्ति जो सफल था उसके पास पहुंचा। उस सफल व्यक्ति की बात यह थी, खास बात यह थी कि उसके अंदर वो जो भी कार्य करता था उसमें वो सफल हो जाता था। तो जब लकड़हारा सफल व्यक्ति के पास पहुंचा जो कि अपने जीवन में सक्सेस था, और उसके पास पहुंचने के बाद उसने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? मैं भी सफल होना चाहता हूं। सफल व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि मैं, जो व्यक्ति असफल होते हैं उनसे सबसे पहले मैंने उनसे असफल होना सीखा। तो लकड़हारा सोच में पड़ गया और कहा, यार जो लोग लाइफ में फेल है वो भी किसी को सिखा सकते हैं क्या? लकड़हारा ने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं है, आप कृपया अपनी बात को स्पष्ट करें। तो वो जो व्यक्ति सफल था उसने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने फेल्यूर लोगों से ही सफल होना सीखा है। तभी लकड़हारा बोला, क्या असफल व्यक्ति को भी सफलता के बारे में सीखा सकता है? सफल व्यक्ति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, असफल। और लकड़हारा व्यक्ति बोला, कैसे? तभी सफल व्यक्ति ने कहा, पहले यह बताइए कि आप असफल क्यों हुए? लकड़हारा बोला, पहले मैं एक अमीर व्यक्ति था। सफल होने के लिए मैंने एक कंपनी खोली जिसमें मैंने बहुत सा पैसा लगाया। मैं बहुत जल्दी सफल होने लगा था, इसलिए मैंने उसी साल एक दूसरी कंपनी खोल ली, जिससे मैंने अपना बचा हुआ बाकी पैसा भी लगा दिया। मैंने जल्दबाजी में 2 कंपनियां खोल ली और मैंने अपने किसी भी कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाया। कुछ ही समय में दोनों कंपनियां घाटे में जाने लगी और दोनों कंपनियां लॉस मेकिंग हो गई। लेकिन मेरे पास घाटा पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। धीरे धीरे कंपनियां घाटा चलता गया और मैं बर्बाद हो गया, और आज मैं एक लकड़हारा का जीवन गुजार रहा हूँ। वह सफल व्यक्ति मुस्कुराते बोला, आपकी असफलता के 2 कारण थे। एक तो आपने एक कंपनियां एक ही साथ खोली, जिसके बाद भी आप कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाए। दूसरा, आपने अपनी कंपनियों में अपना सारा पैसा लगा दिया। जब आपको घाटा हुआ तो उसको उबारने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लकड़हारा बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो उसने अपनी इस बात को स्पष्ट से कहा, मैं अपनी असफलता से सीख भी ले सकता था, लेकिन सफल होता तो बहुत कुछ सीखता, मेरा नसीब ही खराब था।
सफल व्यक्ति बोला, आपने अपनी खुद की असफलता से कुछ नहीं सीखा, इसलिए आप अभी भी असफल हैं, लेकिन मैंने असफलता को सफलता के से सीख कर ही आगे बढ़ा। अगर आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति की तरीके से देखना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को बैठ करके आत्म मंथन करना पड़ेगा। दिन में आपको भले 5 मिनट 10 मिनट आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए लगाना पड़े तो आपको लगाना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं। पहली चीज, क्या आप जो कार्य कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर समय दे पा रहे हैं। दूसरी चीज, कभी भी आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हो, वो आपकी डेस्टिनी थी या मजबूरी में आ गई, आपकी इच्छा थी, क्या उसमें आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं। तीसरी चीज, अगर आपको लगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं और वो आपके लिए नहीं है, आप उससे बेहतर कुछ दूसरा कर सकते हैं, तो उसमें अपना समय लगाइए। क्योंकि जिस कार्य में आप मजबूरी में कर रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, तो आप कभी जीवन में सफल प्राप्त नहीं कर सकते। तो लास्ट golden key of our today's webinar is invest in relationship. While the saying it's know what you know, it's who you know, many overstate the importance of relationship to success. It's certainly not without merit. As a rule, investing in relationship is quite valuable. People are made to be in community. The benefits of being in safe and encouraging community go beyond success in any one area of life. At अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है रिलेशनशिप। आप देखिए कि आप अगर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपका जीवन प्रयत्न बढ़ता रहेगा और आपको कामयाबी देता रहेगा। आप अगर कभी कमजोर भी पड़ते हैं और आपका संबंध, आपका रिलेशन, आपका व्यवहार किसी के साथ मधुर है, तो हो सकता है वो आपको सपोर्ट कर दे। जीवन में रिलेशनशिप उतनी ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंस है जितना कि व्यक्ति के लिए सांस लेना। अगर आपके संबंध मधुर नहीं है, आपके संबंध एकदम फेमिलियर नहीं है और आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, तो आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डेट कैन बूस्ट योर चांस ऑफ सक्सेस इन लाइफ। द रिलेशनशिप यू नीड मोस्ट मे बी ए फ्रेंड who has no connections but supports you when times are low। अच्छा मित्र आपके साथ ब्लड रिलेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको कभी भी बुरे वक्त में साथ दे सकता है। मे बी द रिलेशनशिप यू नीड इज विद ए कॉम्पिटिटर, समवन टू चैलेंज you and keep you sharp in particular pressure. A mentoring relationship which can lead to networking opportunities and individual advice. We know that the lack of these relationships that can be the biggest gap between age our foster you the success. What makes a person successful in life? So the above keys for success are not all or nothing. Odds are the more you have, the better you will do as you try to figure out how to achieve successful in life. And all of these keys or tools can be required and developed by anyone with enough time and grit. It also bears mentioning that a successful life is not all about pursuing success. It is not consumed by delusions of grandeur. आपने ये सारे गोल्डन रूल्स जो मैंने बताए हैं, इनको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। इन गोल्डन रूल्स को आप लिख लीजिए और हो सके तो हफ्ते में एक बार इनके ऊपर विचार करिए। आपका जीवन एकदम से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और आप जहाँ कहीं भी गलतियाँ कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ एवेल्यूट करते रहिए, कामयाबी पाइए
जीवन में कामयाब रहिए, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए। एंड थैंक्स to join our webinar. This is our 41st national webinar, and thanks SK Media Research team, and see you soon on next Sunday for new topic and new webinar. Bye bye and take care.